जो भी पीएम आए कश्मीर में एजेंडा ना बनाए, क्योंकि 370 से यहाँ के रेडी वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, 370 से यहाँ के लेबर को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जिस टाइम 370 टूट गया, हम अब टेलीविजन देख रहे थे, तो टीवी पे जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि आज से 370 जम्मू कश्मीर से खत्म, यू वोंट बिलीव, आई स्वेयर ऑन माय गॉड। मैं बाहर निकला हूं, बाहर मैंने अपने भाई को दौड़ते हुए देखा है। वो रास्ते में दौड़ते दौड़ते अपने हार्ट को पकड़ते हुए चल रहा था। मैंने उसको आवाज दी, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मुझे यहाँ पे कुछ हो रहा है। My son is reading in Bangalore. I was last day I was there. They are enjoying 24/7 electricity. Why not we? And same rate they are paying. I was staying there. I was enjoying their AC. I was enjoying their everything. And my son was paying 200 to 2,000 to 2,200 rupees bill. And this time I am living in Sopore and I am taking this time electricity not more than 6 hours. And I am paying my bill 2,500. Is it not injustice? We are peace lovers. We are not anti-India. We are not anti-country. We are peace lovers. We want development, and most importantly, development includes our electricity, which is being generated from our resource. No matter how many times I come to Kashmir, and this has been a part of my reporting journey for the last 30 years, though this time I'm coming after a long gap, I'm always overwhelmed by its staggering beauty. Just look at where we're standing right now. Let me give you a glimpse of the mountains, the green, lush, forested mountains, the snow-white clouds. It's literally picture postcard pretty. And where are we? Well, at the moment, we're ahead of Baramulla in North Kashmir. And we've stopped at a little resort. It's called Iqbal Resorts. I can show you there. It's got a little sign that says, wake up, it's food o'clock. And you can see by the number of cars that are parked here that it's a really popular place. And we're going to actually have some noon chai and break some bread, literally and metaphorically, with many of the local residents here who have gathered to talk to us. But why is Baramulla important? Let's talk a little bit about that. Now, Baramulla is one of those constituencies in North Kashmir that has broken all records. In fact, the turnout here has been 59%, and the Election Commission says that that number could go even higher. That's the highest turnout since 1984. And remember, this is the first election that's taking place here since the abrogation of Article 370. So to really understand what's happening in the minds of people, what's made them come out in such large numbers, we're going to be talking to people in this special edition of the Dhabas of Democracy coming to you from North Kashmir. This, meanwhile, is the resort. You can see the Iqbal Resort. That's the indoor sort of area. But it's summer, and who would sit indoors and miss this beauty of Kashmir? So we are, of course, going to go and take in this beauty, and we're going to, of course, spend some time here at the base of the mountains. Now remember, Baramulla is also very close to Uri. Uri, as we all know, if you would have all seen the movie, came under a severe terror attack that then led to the surgical strikes. But this Kashmir, with people just sitting out, enjoying themselves, high voter turnout, hotels packed to the gills. In fact, even for us to get a room here was so difficult. This feels like a very different Kashmir. Would the people here agree? Well, we're going to find out. You can see there in the distance, there's a little picnic table laid out for us. Can you think of a more beautiful picnic spot? And we're just walking towards it, and we're going to enjoy some noon chai, as I said, and have a taste of the local Kashmiri breads. There are 11 kinds of Kashmiri breads when I last counted. Lavasa, girda, बहुत है. लेकिन यहाँ पर हमें जो experts हैं, जिन्होंने ये सब
बनाया है वो हमें बताएंगे इसके बारे में। सो फर्स्टली हाय एवरीवन, हेलो, नमस्ते एंड थैंक यू। लेकिन सबसे पहले तो आपसे बात करूंगी, ये है भाई द ग्रेट लेडी हु ओन्स एंड रन्स दिस रिजॉर्ट। व्हाट्स योर नेम? Sadia. So Sadia, I'm Barkha. Hello. Hi Sadia. I'm very overwhelmed to have you here. Thank you. I really want to welcome you wholeheartedly. Thank you. तो इस वार्मथ के साथ यहाँ पर लोग आपको मिलते हैं। सादिया, बहुत से जो लोग कश्मीर नहीं आते, जैसे मैं तो पता नहीं 20 साल की थी उस तब से आ रही हूँ, लेकिन बहुत से लोग हैं वो नहीं जानते कि यहाँ पर जो सामोवार पड़ा है और जो नून चाय हम पीने जा रहे हैं, जो कश्मीर के बाहर जो लोग हैं ना वो नहीं जानते इसके बारे में। तो पहले आप ये बताइए, आप यहाँ बैठ भी सकती हैं, आप यहाँ बैठ भी सकती हैं और मैं भी आपके साथ ही बैठ जाऊंगी। हमारे दर्शकों को समझाइए कि यहाँ की जो नून चाय होती है ना, एक मिनट, वो उसमें क्या अलग होता है? जैसे जो लोग नॉर्थ इंडिया में चाय पीते हैं वो तो दूध, इलायची, मसाले इकट्ठे उबाल के पीते हैं, है ना, या कोई टी बैग वाली चाय पीता है। यहाँ की जो चाय है उसमें क्या खासियत है? ये भी जो चाय है ये भी ग्रीन टी ही होती है, लेकिन जो ये ग्रीन टी होती है इसको हम बहुत टाइम तक ब्रू करते हैं। अच्छा। लाइक अगर हमें जल्दी जल्दी पीनी होगी देन वी ब्रू इट फॉर ओनली फॉर 10 to 20 मिनट्स। लेकिन जो हमारा कश्मीर का पुराने जमाने से चलता आ रहा है वी ब्रू इट फॉर आवर्स। और इस आवर्स मतलब कितने घंटे? 2-3 घंटे हम इसको ब्रू कर 2-3 घंटे चाय ब्रू होती है भाई। हाँ, अच्छा। हाँ, ये होती है। और जो इसको ये भी बोलते हैं पिंक टी, आपने भी सुना होगा पिंक टी, क्योंकि इसमें जो बेकिंग सोडा जाता है उसकी वजह से ये चाय फिर पिंक हो जाती है। और ये क्यों, ये रंग क्यों इम्पोर्टेंट है? ये हमारा ट्रेडिशनल टी है तो उसके बारे में आई डोंट नो मच। तो ये इसी से हमारा सुबह होता है यहाँ पे। और ये कहवा नहीं है, ये अलग है? ना, ये कहवा नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। ग्रीन टी जो है उसको ब्रू करते हैं, इसमें हम सोडा, बेकिंग सोडा डालते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें बटर और नमक जाता है। बटर और नमक, भाई मक्खन और नमक जाता है। हाँ, नमक के बगैर इट्स इनकम्प्लीट। तो ये आप देख सकते हैं, ये पिंक टी जिनके बारे में जो बहुत लंबी आप देख सकते हैं, इट्स अ शेड ऑफ पिंक। इसमें बेकिंग सोडा, बटर, ग्रीन लीव्स जो है, ग्रीन टी लीव्स जो है उनको हम ब्रू करते हैं तब जाके ये बनती है। फिर इसमें मिल्क ऐड होता है। पहले जो हम है ये जो ग्रीन टी लीव्स जो है इनको ब्रू करते हैं और उसी में हम उसी वक्त ऐड करते हैं बेकिंग सोडा। देन जब वो अच्छे से अपना कलर देती है फिर हम इसमें मिल्क ऐड करते हैं और नमक ऐड करते हैं। और ये जो है ना, बाकी टीज आप देखोगे वो केटल में सर्व होती है, लेकिन हमारा जो अपना ट्रेडिशनल है इसको समावार में हम सर्व करते हैं। हाँ, तो ये आपने बहुत अच्छा समझाया। अब मैं लोगों से बात थोड़ा करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप देख सकते हैं तो उस तरफ कश्मीरी ब्रेड जिसको कहते हैं, लेकिन मैंने लास्ट काउंट किया था 11 किस्म की ब्रेड तो मैंने गिनी थी। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कितनी किस्म की ब्रेड है सादिया? अभी तो हमने यहाँ पे बाकिर खानी लाई है और हमारी तंदूरी नान भी है, बटर नान, उसपे बटर लगा हुआ है। तो ये बाकिर खानी के बारे में बताइए। बाकिर खानी भी तंदूर में भी बनती है और ये बेकरी शॉप पे भी ना बेक भी करते हैं। और ये क्रिस्प रहती है थोड़ी? हाँ, ये क्रिस्प होती है। और हमारा जो यहाँ पे है, और मैंने अपने रिजॉर्ट में स्टार्ट किया है, मैंने मकाई चोट स्टार्ट किया है। वो क्या होता है? वो इससे बनती है मक्के के आटे से। तो हमने वो और नून चाय जो कश्मीर का पुराना चलता आ रहा है, मैंने वो यहाँ पे कंटिन्यू किया है, तो आई सर्व दैट हियर। So come, you're going to show us the Bakir Khani and tell us a little bit about it, and then we can get started with our conversation. So Sadia, I'm coming this side. मैं अब सादिया की वेट कर रही हूँ। तो इन अ वे एक्चुअली अगर आप बेगल से फेमिलियर हैं तो ये थोड़ा बेगल टाइप लगता है अगर आप देखिए। तो आप बताइए ये कौन सी ब्रेड है? इसको हम चचूर बोलते हैं। अच्छा जी। इस पे जैसे तिल भी है? हाँ, इस पे वो भी है, तेल भी है, और ये जो है सीधा आटे से बनता है और इसमें थोड़ा यीस्ट भी हम यूज करते हैं। तो उससे फिर ये तंदूर में जाता है, वहां से होके बनता है। सो भाई नाम बताइए दोबारा। चचूर। तो ये है चचूर। और उसके बाद आप लोगों का मैंने ब्रेड छीन लिया, ये तो मुझे सीधा नान ही नजर आ रहा है ना। और ये है
बाकिर खानी, हाँ। तो ये है बाकिर खानी। अगर आप इसका टेक्सचर भी देखिए, आप पकड़िए 2 मिनट जी, क्रिस्पी होता है। ये देखिए, ये टेक्सचर बिल्कुल क्रिस्पी होता है और ये अपने आप ऐसे ही सादा खाया जाता है ना। इसमें क्या-क्या भी डलता है? आटा होता है, बटर भी कुछ यूज करते हैं और फिर ये तो या तो ओवन वगैरह में भी बनाते हैं और तंदूर में भी होती है। कुछ तंदूरी होती है, कुछ ओवन वगैरह में भी तो बनती है। आपको ये जानना चाहिए कि कश्मीर के हर कोने-कोने पे आपको बेकरी मिलेगी एंड कश्मीरीज टेक देयर ब्रेड एंड देयर चाय वेरी सीरियसली, बट दे आल्सो टेक देयर पॉलिटिक्स वेरी सीरियसली। साथिया, आप बैठ जाइए। अब हम बात कर रहे थे बारामुल्ला की, जहाँ पे मैं अभी आपको बता रही थी कि रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ है। 1984 से अब के मुताबिक में हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल have come out to vote. यहाँ टक्कर की लड़ाई भी थी. You've had Umar Abdullah go against Sajad Lone. You have Rashid Engineer also in the fray. तो ये मुझे बताइए सर, आपका नाम पहले? मेरा नाम आबिद है। आबिद, थैंक यू एंड सॉरी आप लोगों को हमने थोड़ा वेट कराया। No issues. लेकिन ये जगह इतनी सुंदर है। आपसे बात करने से पहले फिर भी मैं दिखाना चाहती हूँ, अब आसमान का रंग अगर उस तरफ देखें, अगर उस तरफ देखिए आपको, तो यू लिटरली फील लाइक देयर इज लाइट बीमिंग थ्रू द स्काईज। जो कश्मीर के लोग हैं वो शायद अपनी जगह की ब्यूटी को उस तरह से नहीं पहचानते जो हम बाहर वाले बाहर से आते हैं, हमें एक धक्का लगता है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। आबिद भाई, ये बताइए कि ये जो टर्नआउट है बारामुल्ला का, रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्नआउट, इसको हम किस नजरिए से देखें? बिकॉज लास्ट टाइम 2019 में तो काफी कम था इसके मुताबिक। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन इट, इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट करने हैं? नॉट ओनली इन 2019, 2014 में भी इससे कम था। जी। तो ये टर्न आउट, इट्स ए चेंज, ए बिग चेंज एज वेल। तो जिन लोगों को वोट का मूल्य पता नहीं था, जो लोग, मैं यंग जनरेशन की बात करूंगा, एक 19 साल का, 20 साल का या 25 साल का युवा जो हॉलीडे भी था, ऑफिशियल हॉलीडे था, जो हॉलीडे के दिन पिकनिक्स जाना पसंद करता था या 11-12 बजे नींद से उठता था, वो 7 बजे या 8 बजे क्यू में लग के अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और उसने वोट डाला। तो उस यूथ का जो माइंड सेट है वो चेंज हो गया है, जस्ट बिकॉज ओनली कि 2019 से अब तक जो उनको खालीपन लगा, जो उनको अपनापन कहीं महसूस नहीं हुआ, उन्हें लगा कि नहीं, अब हमें अपनापन इस वोट में दिखने लगा है। जो खालीपन है, जो खला पैदा हो गई है, जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया है, वो शायद फिल इस वोट से हो सकता है। और उनके पास एक ही ऑप्शन, अब देखिए, हमारी जनरेशन ने वी गिव अ चांस टू गन कल्चर आल्सो, 80s में कुछ हासिल नहीं हुआ। वी गिव अ चांस टू हुर्रियत लीडरशिप, कुछ नहीं मिला। वी गिव अ चांस टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, बी इट इज एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, हर किसी लीडरशिप। इनफैक्ट हुर्रियत के पास बहुत बड़ा मैंडेट था लोगों का, उनको भी हमने चांस दिया। सब देख लिया, कुछ नहीं चला। अब लोगों को यही लगा कि हम किसी ऐसे लीडर को मैदान में लाएं, वेदर इट इज सजाद लोन साहब फ्रॉम या उमर साहब या इंजीनियर राशिद फ्रॉम AIP। तो so it is a new beginning in a way. It is a new beginning. आप इससे सहमत है कि भाई सब देख लिया, सेपरेटिज्म भी देख लिया, इन्होंने कहा ना गन कल्चर भी देख लिया, हुर्रियत का फेज भी देख लिया, बॉयकॉट कॉल्स का फेज भी देख लिया, लॉकडाउन फेज भी देख लिया, अब शुरुआत कहीं दूसरी होनी है? नहीं मैम, वो इस हद तक मैं बिल्कुल राजी हूँ इनसे कि मतलब ये लोग थक गए हैं बाकी लीडरों से, ये सच है। मगर अगर आप इस वोटिंग को चेंज के हिसाब से देखेंगे फिर बिल्कुल गलत है। इस वक्त जो बारामुल्ला में वोटिंग हुई, इट इज जस्ट बिकॉज एक ऐसा लीडर जेल में बंद था, इंजीनियर रशीद, जिसके लिए लोग बिना किसी लालच के बाहर निकले और वोट दिया। और वो मैक्सिमम वोटर्स वो हैं जिन्होंने आज तक कभी वोट नहीं दिया। तो वो तो रिजल्ट में ही पता लगेगा, आपकी थ्योरी है ना? बेशक, बट 22% इज नॉट अ जोक। 22% जो रेज हुआ है उसमें बहुत सा फ्रैक्शन ऐसा है जिन्होंने कभी वोट नहीं दिया। तो मैं जस्ट टू गिव कॉन्टेक्स्ट, वन ऑफ द 3 मेन कैंडिडेट्स हियर इज स्टिल इन जेल। और आपका कहना, सॉरी आपका नाम नहीं मैंने पूछा। मैं एडवोकेट उबैद, मैं एक्चुअली स्पोक्स पर्सन हूं उनका। अच्छा, तो आप उन्हीं के साथ हैं। तो ये बोल रहे हैं कि भाई कारण दूसरा था, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि लार्जर मीनिंग है इसमें? लार्जर मीनिंग है। और ठीक है, कहीं ना कहीं मैं उबैद भाई की बात से सहमत हूँ कि शायद एक वो ये स्पोक्स पर्सन है ऑब्वियसली, एंड कोई बुरी बात नहीं है कि अपनी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर रहे हैं, बट आई विल से कि जो वोटर टर्न आउट हुआ, इट्स नॉट ओनली फॉर द AIP और NC। आप देखिए, मतलब डोंट गेट मी इनटू द PCs, कोई बात नहीं, आप बोलिए। अंदर तो
पीसी के लिए भी था, सभी के लिए था, मतलब आपका ये कहना है? जी, मैंने कहीं ना कहीं पे ऐसे जमात के लीडर्स को देखा जिन्होंने कहा कि एक टाइम पे चूही बिल्ली का खेल वो खेलते थे, एनसी और जमात इस्लामी, लेकिन आई हैव सीन सेवियर जमात इस्लामी लीडर्स हु कॉस्टेड देयर वोट फॉर एनसी आल्सो. सो इज इट अ न्यू स्टार्ट डेमोक्रेसी के लिए? Yeah, it undoubtedly is a new start, but I would like to disagree with the point my friend told. Ne mentioned कि there has been a spike of 22% in the voting. That's completely true. मगर इनका कहने का ये अंदाज कि वो सिर्फ इन्हीं के नुमाइंदे पे गया है ना, ये नेता बन गए यहाँ पे. बिल्कुल, that's completely not true. मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि people of Baramulla, they've realized that they've not gained anything by abstaining from voting. They've realized that the only option they have which can solve their problems is voting. And I take pride in saying that the people of Baramulla, they have overcome these sentiments and all those things, and they are now voting on the basis of merit, and they are voting for the person who is actually going to represent them in the parliament. And what's your name? My name is Sahil. And what do you do? I'm in Congress and I'm a businessman as well. अच्छा, यहाँ पे कोवर्ट पॉलिटिकल सपोर्टर्स बहुत है, लेकिन इन्होंने खुल के सपोर्ट किया, इन्होंने जनरल बात की. I'm not supporting in. देखिए, कल को अगर एनसी का नुमाइंदा आगे आता है, चलिए इंजीनियर रशीद ही आगे आते हैं, इट्स अप टू द पीपल, लेट पीपल डिसाइड. तब एंड आई टेक प्राइड इन सेइंग कि जो इस बार लोग नुमाइंदा चुनेंगे वो सच में लोगों का नुमाइंदा होगा, एंड ही विल बी अ रियल लीडर ऑफ कश्मीर. ओके, व्हाट्स योर नेम सर? माय नेम इज शेख मुनीब, एडवोकेट शेख मुनीब. अच्छा, यहाँ पे लॉयर्स बहुत है. अगर उस तरफ भी आप देखिए पीछे कितनी सच कितनी खूबसूरती है वहाँ, द सेरेनिटी ऑफ द वाटर, द माउंटेन्स. तो ये बताइए कि क्या बदला पिछले 5 साल में? बहुत बदला. 370 एब्रोगेट हुआ, लेकिन जो माहौल आज कश्मीर में नजर आता है वो, मैं तो 25 साल 30 साल से यहाँ आ रही हूँ, बदला हुआ कश्मीर है. कैसे बदला? देखिए, मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो इससे पहले यानी 5 अगस्त 2019 से पहले हमारे यहाँ पे हालात हुआ करते थे, वो आज बरकस है. बरकस कैसे हैं कि जिस टाइम 370 का एब्रोगेशन जम्मू कश्मीर में हो गया, वो एक कश्मीरी को जबरदस्त दचका लगा. मैं अपनी पर्सनली आपको अपनी बात बताऊंगा कि जिस टाइम 370 टूट गया, हम अब टेलीविजन देख रहे थे, तो टीवी पे जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये चिल्ला के बोल रहे हैं कि आज से 370 जम्मू कश्मीर से खत्म, यू वोंट बिलीव, आई स्वेयर ऑन माय गॉड. मैं बाहर निकला हूं, बाहर मैंने अपने भाई को दौड़ते हुए देखा है. वो रास्ते में दौड़ते दौड़ते अपने हार्ट को पकड़ते हुए चल रहा था. मैंने उसको आवाज दी, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मुझे यहाँ पे कुछ हो रहा है. मैं पहाड़ों की ओर देख रहा हूं कि क्या ये वही कश्मीर है? क्या इस पहाड़ का कोई रंग चेंज तो नहीं हो गया? हमारे साथ ये ऐसा क्यों हुआ? पर मैं आपसे आगे पूछना चाहती हूँ, उस समय का शौक था, लेकिन अब 5 साल गुजर गए, ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड कर दिया इस फैसले को, और चेंजेस भी आए जो पॉजिटिव लगते हैं, ठीक है. पॉजिटिव चेंजेस क्या है? देखिए, पॉजिटिव चेंज हमारी ये है कि पहले पथराव हुआ करता था, आज पथराव नहीं होता है. पहले हड़ताल हुआ करती थी, आज हड़ताल नहीं हो रही हैं. पहले हालात बहुत ज्यादा खराब हुआ करते थे, आज हालात बहुत ज्यादा खराब नहीं है. इस बात को मैं एडमिट कर रहा हूँ, इस बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ. लेकिन इस वक्त का जो वोटर टर्नआउट है वो बहुत ही ज्यादा हुआ. तो व्हाट डू यू रीड इन इट? तो इसमें आप ये चीज समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर जो दिल के अंदर दर्द है वो शायद वोट के जरिए से. So you are saying it's a manifestation over the shock and the pain and the anger, that is, that people felt when 370 was abrogated. तो अब मैं यहाँ पे आती हूँ. हेलो, हाँ जी, 2 मिनट बैठ भी जाती हूँ. ये आप देखिए, सामोवार की चाय बस खाली ही हो गई है, फटाफट सबने पी ली. तो आपका नाम क्या है? आई एम एडवोकेट राबिया खुर्शीद, डिस्ट्रिक्ट वुमेन्स प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी. अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, हमें पता नहीं था कि इतने लॉयर्स और इतने पॉलिटिशियंस होंगे, पर आ ही गए सब. तो आप ये बताइए कि ठीक है, 370 का सदमा हुआ, यहाँ की सभी रीजनल पार्टीज ने एक पोजीशन लिया है कि भाई नहीं, 370 को रिवोक होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो अब उस पर फाइनल वर्ड दे दिया है, ठीक है. लोग एक्चुअली क्या महसूस कर रहे हैं? सी, लोग महसूस कर रहे हैं 370 का एब्रोगेट होना, वो हमारे लिए दैट इज, जिसको हम अपना तशख्खुस समझते हैं, जिसको हम समझते हैं दैट वाज आवर एग्जिस्टेंस, वो ले लिया गया है. दैट हैज गॉन, एंड इट वेयर द, आई कैन से, द रीजनल पार्टीज हु टुक इट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया.
and Supreme Court had decided it in against us. Right now, एक और review petition भी होगी, that has also been decided against us. What I believe is that 370 is a judicial precedent right now. It is nothing than a judicial precedent. Now, if कोई भी regional party, if any of the regional party is saying that we'll get it back, ये सरासर लोगों के साथ धोखा है. ये आपने इम्पोर्टेंट बात की. ये कहती हैं कि भाई कोई भी अगर लोगों को जाके ये बोल रहा है कि हम लेके आएंगे इसको वापस, तो ये झूठ है. I want to explain it. Yeah. See, at the moment when 370 was abrogated, our member parliaments were in the parliament at that time. In front of them, it was abrogated. They were not able to do anything at that time. Now, suppose for the sake of argument, let's presume that हमारी रीजनल पार्टीज के लाइक माइंडेड लोग जो चाहते हैं 370 वापस आए, वही 3 को हम वापस पार्लियामेंट में भेज देते. टेल मी, इज देयर एनी प्रोसीजर दैट दे कैन गेट इट बैक? नो, पर इसका मतलब लोग चाहे कुछ भी ऊपर से बोले, एक एक्सेप्टेंस हो गई है कि 370 वापस नहीं आ रहा. See, what is our contention that we have to accept it. I agree. You've made an honest point. और अब तो सुप्रीम कोर्ट तक भी फाइट चली गई है. तो अगर कैमरा अब इस तरफ आए तो यहाँ पे भी इस साइड भी लोगों से बात करते हैं. You can stand. Yes. Why don't we walk a little bit? आपका नाम? एडवोकेट उमान बशीरवानी. आई एम स्पोक्सपर्सन JKPC. अच्छा. तो यहाँ पे मैंने यही कहा कि यहाँ पे सभी पार्टी के नुमाइंदे भी हैं, स्पोक्स पीपल भी हैं. सभी पार्टीज और काफी सारी पार्टीज ने ये एक मुद्दा बनाया है 370 को. जैसे आपने अभी सुना, 370 अब वापस नहीं आ सकता. No, what I feel is that 370 was very much irrelevant in voting right now. अच्छा. You had political monopoly in the state of Jammu and Kashmir. You had two parties, Hurriyat or National Conference, who were holding the show. Now you have flourishing of more than 10 parties, 10 new ideologies, who are assembling people with them. So the voting is very much a common thing that will happen because there are too many political parties existing now. First, so how do you read the high turnout? High turnout, I read as there has been political activism in state of Jammu and Kashmir from separatism to the mainstream has grown. It is not something that has come from ground or come from air. So separatism has moved into mainstream. Exactly. मतलब जो separatists थे आज वो mainstream में आ रहे हैं. Exactly. It is what has happened today. What has happened is that they have enveloped them. Because there are new political parties who are giving new vision to the people of the Kashmir. इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात की. इन्होंने कहा कि एक टाइम पे जो सेपरेटिस्ट स्पेक्ट्रम पे था वो आज मेन स्ट्रीम में आ गया है या आ रहा है. क्या आप इससे सहमत हैं? आपके कोर्ट से लग रहा है आप भी वकील हैं. बिल्कुल, मैं वकील हूँ. मेरा नाम एडवोकेट मुदस्सिर नक्शबंदी. और आप किस पार्टी के साथ हैं? मैं आपके साथ हूँ. अच्छा. चलो मैं भी फिर पार्टी बना ही लेती हूँ एक. नहीं, अच्छा. इन्होंने अभी बड़ी बैठिए ना, वहां बैठिए. इन्होंने अभी बड़ी इंटरेस्टिंग 2 दिलचस्प बातें यहाँ पे की गई कि लोगों को मानना पड़ेगा कि 370 जो पार्टी बोल रही है 370 वापस आएगा, वो एक तरह से लोगों को झूठ बोल रही है. इन्होंने कहा कि 370 मुद्दा नहीं था इस वोटर टर्नआउट के लिए. एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म, एक पॉलिटिकल एनर्जी आई है कश्मीर में. 5 साल हो सकता है उस पे ताला लगा था, ताले खुल गए और एकदम से वो एनर्जी बाहर आ गई. बरका, फर्स्ट थिंग इज दैट आई एम मीटिंग यू फॉर द सेकंड टाइम. ओह माय गॉड, यू आर लुकिंग वेरी फेमिलियर. नाउ रिमाइंड मी वेरी. मैं आपसे पहले मिला हूं. इट वाज एपीजे अब्दुल कलाम, हिज एक्सीलेंसी. हां, बिल्कुल. चलो, नाइस टू मीट यू अगेन. सो जो अभी लोगों ने वोट दिया है, इट्स डेफिनेटली फॉर डेवलपमेंट. अच्छा. अभी जो अगर हम 370 फॉर मी इट्स अ हिस्ट्री नाउ. सो अगर हम 370 की सच्चाई, जैसे एडवोकेट राबिया ने आपसे बोला कि लोगों को हम धोखा नहीं दे सकते हैं, ये सच्चाई ये है कि 370 आर्टिकल हमें भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. देखिए, यहाँ मैं 25 साल से यहाँ पे आ रही हूँ. मुझे लगा नहीं था कि एक दिन होगा जहाँ पे मुझे कोई कश्मीरी कहेगा कि 370 अब हिस्ट्री है. डेफिनेटली इट्स अ हिस्ट्री नाउ. आप देखिए कैसे 370 आएगा. हमने इसी चीज को कोर्ट में भेज दिया. अगर कोर्ट में बात नहीं होती, हमारे पार्लियामेंटेरियंस वहां पे थे, जस्टिस मसूदी साहब थे, अकबर लोन साहब थे, बाकी साहिबान थे. उन्होंने क्या किया? जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, जब उन्होंने परखा उसको, तब उनको याद नहीं आया. जब सभी चीजें खत्म हो गई उसके बाद वो अपना सिर फाड़ने लगे लास्ट. सो दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल. कोर्ट के ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के ऑलरेडी डिसीजंस आ चुके हैं. सो वी शुड एक्सेप्ट इट. तो ये जो यहाँ आप देख सकते हैं कि चाय की कितनी गर्म होते होते द लवली साउंड ऑफ सिमरिंग टी. लेकिन आप मुझे ये बताइए, तो इफ इट्स अ वोट फॉर डेवलपमेंट, लोगों के सबसे बड़े मुद्दे क्या है? देखिए, सबसे बड़े मुद्दे आज के वक्त में है हमारा हेल्थ सेक्टर, हमारा एजुकेशन.
और सबसे उससे ज्यादा अगर आप मुद्दा देखेंगे, आप सबसे बड़ा जो है हमारे यूथ जो है, नौजवान जो है वो पढ़े लिखे हैं, अपॉर्चुनिटीज। यस, वो जो हमारा जॉब यहाँ पे नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कहीं पर भी। वो सबसे बड़ा मुद्दा अगर आप देखेंगे यहाँ पे यूथ वोट करने निकला है एज कंपेयर टू जैसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत ज्यादा ओल्ड एज बंदे होते थे, बट दिस टाइम इट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट। जो लोग निकले हैं वोट डालने के लिए वो यूथ निकला है। जैसे एडवोकेट उबैद साहब बोल रहे थे आपको कि यूथ यहाँ पे निकला या 22% वोट्स निकले। देखिए मैं और ये कोई डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किस पार्टी को वोट डाला, वो तो उसी दिन पता चलेगा वोट किसको। बट द थिंग इज यहाँ की जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, और जो लोगों का जॉब है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है यहाँ के, अगर उनके ये चीजें मुद्दे हल होते हैं, 370 को छोड़ के वो आगे अपने रोजगार ढूंढ रहे हैं इस सब इलेक्शन। ये बहुत जरूरी बात है, और मैं ये सालों से ये प्रॉब्लम रहा दैट वेयर डू द यंग एजुकेटेड कश्मीरीज गो, पर तब हालात एक सिक्योरिटी प्रिज्म के थ्रू अगर देखे जाते तो इतने बुरे थे कि यहाँ पर कोई आने के लिए तैयार नहीं था टू गिव दोज अपॉर्चुनिटीज। और शायद धीरे धीरे वो बदल रहा है। मैं इतना बता सकती हूँ कि होटल का कमरा मिलना बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी, जो एक तरह से मेरी घर वापसी है कश्मीर आना, क्योंकि मैं इतनी क्लोजली यहाँ के लोगों से और यहाँ के एक तरह से इश्यूज से जुड़ी हो रही हूँ जर्नलिस्टिकली। यहाँ पे पहले आप ही के पास आती हूँ, ऑर्डर में ही आती हूँ ताकि कैमरा के लिए भी थोड़ा इजी रहे। हाँ जी सर, आपका नाम? बिल्कुल, मेरा नाम बरखा जावेद भट्ट है, मैं एप्पल टाउन सोपोर का हूँ। हाँ, तो सोपोर यहाँ पे करीब है, जहां से आप जो सेब खाते हैं, आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि बहुत से सेब जो बेस्ट सेब है इंडिया में जो मिलते हैं वो सोपोर से आते हैं। बताइए। Today I am happy that our Barkha sister, she was our dream girl of Kashmir. We have seen I have seen first time my sister here. I am so happy. Thank you for that, because जब भी आपने बात की, जब भी आपको मैं देख रहा था, आपने कभी ना कभी हमारे जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो भी होता था आपने टच किया। उसके लिए मैं, जो मेरा एप्पल टाउन सोपोर है जहाँ पे 1,10,000 लोग रहते हैं, उनकी तरफ से मैं एंटायर आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। We love Barkha sister. थैंक यू। आप बताइए। बिल्कुल, जैसे कि आज का आपने मुद्दा बताया, मैं बेसिकली आई एम ए स्पोर्ट्स लवर। अच्छा, आई वांट टू सी, आज तक जितनी भी सियासत हो गई, मैं तो ये डरूंगा नहीं बोलने में, सियासत जितनी भी हो गई, जो भी डेवलपमेंट हो गई, या वो जम्मू में हो गई या वो श्रीनगर में हो गई, एंटायर जो हमारे जो आज तक जो मंत्री लोग यहाँ पे मंत्री बनते आए, उन्होंने जिस दिन उन्होंने वोट हमसे मांगा, हमने वोट दे दिया। चाहे पिछले टर्न में वोट कम पड़ते थे, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। चाहे कोई 1 लाख वोट से जीते या 1 वोट से जीते, विन इज ऑलवेज विन। मगर क्या हमारे साथ उस वक्त शबी खून होता था जब हमारा कोई भी यहाँ पे एमएलए बनता था और दूसरे दिन वो श्रीनगर चले जाते थे और जम्मू तो आप कहते हैं कि ये एरियाज निगलेक्ट हुए? बिल्कुल 100% मैं अपने नॉर्थ कश्मीर की बात करूंगा। तो ये जो टर्नआउट, जो बहुत तादाद में लोग आए हैं, वो क्या ढूंढते हुए आए? डेवलपमेंट, only development, and number 2, हमारे पास we have a lovely sports persons here. You might seen in cricket or in football, we have a tremendous scope. But अगर हमें किसी चीज का यहाँ पे है ही नहीं, फुकदान नहीं है, that is stadiums. We must have indoor stadiums in district Baramulla, in North Kashmir, in Kopara, in Bandipora, and in my town Sopor. उसकी हमें यहाँ पे बहुत कमी लगी, और हम चाहते हैं कि जो हमारे अब ऑनरेबल मेंबर, जो पार्लियामेंट मेंबर, जो हम आज की डेट में भी बोलते हैं कि लद्दाख हमारे साथ है, जो हमारे 6 ऑनरेबल मेंबर्स जो पार्लियामेंट में जाएंगे, वो एक ही बार हर किसी एरिया की डेवलपमेंट की बात। आप बहुत बढ़िया बात बोले। मैं ये लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, बहुत से लोग शायद जानते नहीं कि क्रिकेट बैट्स जो है वो बहुत तादाद में यहाँ बनती है, और स्टेडियम नहीं है, ये भी एक आयरनी है। तो अब यहाँ पे भी बात करते हैं थोड़ा सा, अगर आप और, हाँ जी, ऐसे घूम ले। आपका नाम? मेरा नाम जैद वानी है, मैं अपनी पार्टी से। अच्छा, तो अब आप बताइए कि बहुत से लोगों ने यह कहा डेवलपमेंट, किसी ने स्पोर्ट्स की बात की, किसी ने जॉब्स की बात की, सबसे बड़ी मांग यहाँ पे क्या है? दरअसल यहाँ तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है जी। तो उसके लिए जो ये यूथ है इस वक्त जो है वोटिंग के लिए निकला, तो वो उनको उम्मीद है कि उनकी जिंदगी में कुछ बदलेगा। हाँ, सीधी सी बात है। और यहाँ पर बहुत सारा यूथ जो है वो जेलों में है, उधर इधर है, तो उनको कैसे वो छुड़ाएं, कैसे वो वापस लाएं? जी। तो उसके लिए उन्होंने कोई नुमाइंदा जरूरी चुनना है। जी।
जो वो उनको वहां से वापस लाए। तो इसलिए उन्होंने जो है वोटिंग कास्ट की और बल्क में कास्ट की। बहुत सारा यूथ जो है आप देख रहे हैं लंबी लंबी participate लाइन कर रहा है। लगी। जी, मैं फिर दिखाना चाहती हूँ कि हम कहाँ बैठे हैं। अगर आप कैमरा उस तरफ लेफ्ट को घुमाएं तो आपको दिखेगा कि हाउ द स्काईज आर इन अ वे यू नो जस्ट शाइनिंग। ऐसे लगता है कि शाइनिंग देयर ब्लेसिंग्स ऑन कश्मीर, जिसने इतना दुख भी देखा है, वायलेंस भी देखा है, टर्मोइल भी देखा है, ट्रेजेडी भी देखी है, और अब उम्मीद है कि खुशी, अपॉर्चुनिटी, एक नई शुरुआत भी एक्सपीरियंस कर ले। अब मैं सबसे एक छोटा सवाल पूछूंगी। हमारे देश में एक नए प्रधानमंत्री इलेक्ट होके आने वाले हैं। वो कौन है वो देश के लोग डिसाइड करेंगे, वो जो भी हो, जिस भी पार्टी से हो। अगर आप लोगों का एक छोटा सा मैसेज हो भारत के नए प्रधानमंत्री के लिए कि कश्मीर को सबसे ज्यादा क्या जरूरत है, वो क्या है? मैं आप ही से शुरू करती हूँ। सबसे बड़ी चीज जो है कश्मीर के लिए वो पीस की जरूरत है। तो यहाँ यूथ कैसे इन्वॉल्व हो जाए पीस में, और तरक्की कैसे हो जाए, खुशहाली कैसे आ जाए, लोग कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करें, तो ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी जो आने वाले जो है पीएम है। सो द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मस्ट फोकस ऑन पीस एंड हाउ टू बिल्ड ऑन पीस। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी चीज को, जो भी पीएम आए, कश्मीर में एजेंडा ना बनाए, क्योंकि 370 से यहाँ के रेडी वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। 370 से यहाँ के लेबर को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। उसको फर्क पड़ता है कि उसका रोड अच्छा है, उसका स्टेडियम बना है, उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उसके स्कूल्स, हायर सेकेंडरीज, कॉलेज अच्छे हैं, उसको नैक में एक्रेडिटेशन मिले, और उसकी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, और उसको डिग्निटी और ऑनर मिले। आप बताइए मैसेज। मैम, मैसेज सिंपल एंड क्लियर है कि हम लोगों को भी एट पार बाकी रियासतों के मतलब जो लोग हैं उनके साथ जैसे उनको वो ट्रीट करते हैं, हमें भी वैसे ही ट्रीट किया जाए। हम भी, अगर आप मतलब जैसे हिंदुस्तान का एक हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर, तो हम जो रहते हैं हमें भी उसी नज़र से देखा जाए जैसे बाकी सबको देखा जाए। ये तो बहुत ज़रूरी बात है। हमारे कुछ टेलीविजन चैनल्स भी हैं, उनकी काफ़ी गलतियां रही इसमें विलिफिकेशन में, तो वो भी थोड़ा सुन ले इस बात को। जी, next message to the next prime minister. Yeah, I would like to agree with what my friend said. I want to give a message that we should be treated equally as the Indians who are treated outside Kashmir. We need to tell them that we are as Indians as they are outside, and it's not just about Kashmiris. It's about the Muslims throughout the country. We're not any second-class citizens. We are as Indians as there's a Indian who is residing in Delhi, who's residing in Punjab, or who's residing in Uttar Pradesh. बिल्कुल, बताइए। मेरी एक मैसेज है जो हमारे नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का यूथ है वो बहुत परेशान है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर उनको रोज़गार मिल जाता है तो शायद डेवलपमेंट भी रोज़गार के साथ साथ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं है, हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, हमारे जो यूथ हमारा जो है वो गलत चीज़ों में मुब्तला हो रहे हैं, वो ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं और स्ट्रेस में मुब्तला हो रहे हैं। तो अगर हमें रोज़गार दिया जाता है तो इससे बड़ी नियामत हमारे लिए कोई नहीं होगी। So asking really for economic development, person after person. अगर मैं कैमरा को इस तरफ बुलाऊं, और मैम आप बताइए your message to the next Prime Minister of India. पकड़ लीजिए माइक। It would be definitely, we are peace lovers. We are not anti-India. We are not anti-country. We are peace lovers. We want development, and most importantly, development includes our electricity, which is being generated from our resources. See, our Kashmir is considered to be a hub of electricity, एक समंदर जहाँ से बिजली की पैदावार होती है, but we are being deprived. See, I want to say something here. A simple household, a BPL category person, he's receiving monthly electricity bill of 2,500. So we need this sort of concession. This is development we want, employment we want. बिजली, सड़क, पानी के मुद्दों की बात करते हैं हम। बाकी भारत के बाकी हिस्सों में यहाँ पर भी सबसे बड़े मुद्दे बिजली, सड़क, पानी और नौकरियां, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। हाँ जी, आपका मैसेज टू द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Whosoever will be representing us in the parliament, there should be constitutional bargain over the Article 370. If not Article 370, but something that will provide us safety to our jobs, at least safety to our land, because we are environment
environmentally pretty fragile. Okay. That is those are the two things. And third is not to keep watch over every investment made by the businessmen of Jammu and Kashmir, not to put ED, NIA and the income tax and GST all behind them every second day. So that is going to ruin our whole of the economy. Okay. Hanji. इट्स डेफिनेटली डिग्निटी, डेवलपमेंट, और जो कश्मीरियों के साथ बाहर हो रहा है, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ, मैं स्टूडेंट्स की बात करूंगा। ओवरऑल आप पंजाब में देखेंगे, उत्तराखंड में हर जगह स्टूडेंट्स के साथ कुछ न कुछ आए दिन हो रहा है, तो उस चीज को दूसरी माँ का सलूक नहीं करना चाहिए। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कंट्री, सो इट्स वेरी क्लियर कि उनके साथ भी वैसे ही किया जाए। सो गिव अस डिग्निटी एंड इक्वालिटी, स्पेशली दोज हु आर आउटसाइड ऑफ द वैली। हाँ जी, लास्ट वर्ड टू यू जी। मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होगी, वो देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो मेरी उससे रिक्वेस्ट होगी, हमें बताइए कि हमने कौन सा खता किया। वी आर ऑन द टेल एंड लास्ट, जहां हम हिंदुस्तान के एक कोने में रहते हैं। अगर हिंदुस्तान के बाकी शहरों में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो हमें क्यों नहीं मिलती है? मुझे देश के प्रधानमंत्री से एक ही बात कहनी होगी, देश के प्रधानमंत्री आपको मुबारक हो जब आप अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे, लेकिन हमें 2-3 पावर प्रोजेक्ट वक्फ कीजिए। और उसमें एक चीज होना चाहिए कि जब हमें बिजली बचे तब हम किसी देश के किसी कोने में और डालें जितनी भी बिजली हमें जरूरत है। क्योंकि मैडम मैं बताऊंगा, माय सन इज रीडिंग इन बैंगलोर। I was last day I was there. They are enjoying 24/7 electricity. Why not we? And same rate they are paying. I was staying there. I was enjoying their AC. I was enjoying their everything. And my son was paying 2,200 to 2,200 rupees bill. And this time I am living in a Sopore and I am taking this time electricity not more than 6 hours, and I am paying my bill 2,500. Is it not injustice? And now I want to request my honorable Prime Minister that please give us 2-3 power projects for our Jammu and Kashmir. आप देखो, अगर हकीकतन आप चाहते हो कि हमारे जम्मू कश्मीर का भला हो, तो ये भला होगा। और हर हमेशा जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा, इधर इट वाज इन प्रीवियस गवर्नमेंट इट वाज कांग्रेस, एंड इन लास्ट टाइम इट वाज आवर मिस्टर मोदी, आवर बीजेपी। ये हर हमेशा हमें ये बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा ताज है, ये हमारा सर है। मेहरबानी करके इफ वांट टू सी दिस होल आवर कंट्री, जहां पे करीबन 140 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें से हम लोग भी वो उनके अपने हैं। अगर वो हकीकतन ताज को अच्छा देखना चाहते, दे हैव टू गिव अस सम अच्छा बिहेव हमारे साथ करना है। सोतेलीपन का जो सलूक आज तक वो हमारे साथ करते, वो नहीं करना है, और इजी एक्सेस देना है। इफ वांट टू सी रियली, आप देखोगे आज वी आर हैप्पी। अगर आपने कल की न्यूज सुनी होगी, हमारी 92 फ्लाइट्स यस्टरडे हियर की। दैट इज व्हाई वी वांट more and more infrastructure for tourism. For tourism, there should be a special package also. Okay, thank you. So very impassioned voices there. And as we end, I just want to take you for a little walk. क्योंकि इतनी ब्यूटी के बीच में वॉक ना लिया जाए तो वो भी एक तरह का सा नाइंसाफ ही कहलाया जाएगा. And you can see people are just sitting out. You can see 2 young men sitting out, looking out at the water. Hello. और मैं आप ही के पास आ रही हूँ. एक मिनट आ रही हूँ आप ही के साथ बैठने आ रही हूँ मैं. आ जाओ बैठो, शर्माओ मत. मैं अभी बैठी गई, थोड़ा सुकून मिला ऐसे. अब आप ये देखिए कितनी शांति से हम यहाँ बैठे हैं. मेरा नाम बरखा है, मैं दिल्ली से आई हूँ. आपका नाम? मेरा नाम माजिद है मैम. अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 16. जी मैम. स्कूल में पढ़ते हो? जी मैम. और वो कहाँ गए आपके दोस्त? भाग गए. अच्छा, आपकी क्या ड्रीम है आगे बढ़ने की? क्या करना चाहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर. जी मैम. और यहीं पे पढ़ेंगे कि कश्मीर के बाहर जाके पढ़ेंगे? इंशाल्लाह वो तो देखेंगे मैम, कहाँ जाएंगे, क्या होगा तकदीर में. So Majid at 16 wants to be a software engineer, लेकिन अभी के लिए बस enjoy कर रहे हैं शाम. जी मैम. So this is really a slice of voices from the ground here in North Kashmir, signing off from one of the most beautiful spots in India with Anoop and Vinod. Barkha Dutt for Mojo Story. Namaskar and hello everyone. Welcome to a ride through the heart and the soul of India. क्योंकि जब इलेक्शन सीजन आता है तो कौन जीता, कौन हारा, कौन आगे, कौन पीछे, ये बातचीत तो होती ही रहती है. But it's also a time for travel and meeting people and getting to know your own country better. So, welcome to the dhabas of democracy, where every bite tells a story, where every conversation will spice up your day. Experience the
masala, the flavor, the swad of this election with us as we take a lovely, a unique road trip from the south to the north of India, traveling thousands of kilometers to bring you the flavor of this election.